Hello everyone, welcome back to the Global Channel. I hope you all are doing well. So today we are starting with a fresh topic, that is climatology. So you all know that in last lecture we have completed a geomorphology. So today we are going to start with climatology. Okay. So what is this climatology? Climatology, for example, geomorphology means geo, earth, and morpho means change. Like what are the changes which we can see in our earth, how the landforms have been developed or how they have evolved, what are the changes which we can see on the earth's surface, so which that all we have done in our geomorphology. Now we have to do climatology. From this word only we can get that we have to study the climate of the earth. How is the climate of the earth? How is the nature of it? How it changes? What is the difference between weather and what is climate? So all of this we will cover in this topic. The first and the foremost thing which we have to do, हमें अपना climate समझने के लिए हमें समझना होगा what is atmosphere. First we need to understand atmosphere हमारा क्या है. So let's start with this. In our school classes we have studied that atmosphere is a blanket of gases. This is earth and यहाँ जो इसको ऐसे surround कर रहा है, blanket of gases. या मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इज एटमॉस्फेयर. लाइक ये हमारी अर्थ है एंड दिस इज एटमॉस्फेयर. अब सम थ्योरी सेज कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट इज अप टू अ हाइट ऑफ 32,000 किलोमीटर्स. And some theory says कि no, it is not up to 32,000. Instead, it is up to a height of 64,000 kilometers. So we will study this also. कि what is the actual height of atmosphere? So let's see. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि what is the composition of atmosphere? किस चीज से हमारे पास हमारा atmosphere बना है? So composition. There are three things: gases, water vapor, and dust particles, or you can say dust. Okay, so gases. Main gases which we can see is nitrogen. From school only we know कि nitrogen सबसे ज़्यादा maximum proportion cover करते हैं. For example 70% or you can say 78.02%. Next we have oxygen. Next argon. And at the end we have carbon dioxide. Other gases are also here, for example helium. Next we have neon, xenon and krypton, something like this. So ये gases भी है but इनका बहुत कम proportion है which we can see in our atmosphere. Next we have water vapor. Water vapor क्या होता है? At room temperature जो हमारा liquid का वेपर पार्ट है, द गैसियस पार्ट ऑफ द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड है, उसका गैसियस पार्ट है, हवा में जो घुलता है वो वाला पार्ट, दैट इज नोन एज वाटर वेपर. अब व्हाट इज दिस? अब हमारे पास वाटर वेपर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, कहाँ कहाँ से ऐड होते हैं, विल डू दैट. सो फर्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन. दिस वी नो कि जो एक लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इवेपोरेशन. नेक्स्ट थिंग इज सब्लिमेशन. What does this term sublimation means? Sublimation means
वाटर की सॉलिड फॉर्म जब डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इनटू गैसियस फॉर्म, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन. नेक्स्ट कम्स ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन होता है इट इज सेम एज इवेपोरेशन, बट द कंडीशन अप्लाइड हियर इज कि जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स के लीव्स होते हैं उन पे जो वाटर एक्यूमुलेट हुआ होता है, इकट्ठा हुआ होता है, जब वो इवेपोरेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. अनदर थिंग अबाउट वाटर वेपर इज कि जो हमारे वाटर वेपर हैं ये हमें एट अ हाइट ऑफ 90 किलोमीटर्स तक की हाइट पे बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते हैं. आफ्टर दैट एट अपर हाइट्स हमें मिलते हैं, बट दे बिकेम रेरिफाइड. बहुत कम मिलते हैं, रेरिफाइड हो जाते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ जगह कुछ कुछ पार्टिकल्स में हमें मिलते हैं. बट 90 किलोमीटर्स के एरिया तक वी कैन सी अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन आवर एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट वी हैव डस्ट. So we have dust particles. This is the solid suspended particles. For example, these are small solid suspended particles. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सी सॉल्ट है, ठीक है, वी हैव पोलन्स. नेक्स्ट हमारे पास ऐश है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जितने भी कॉमेट्स और मेटेओरॉइड से जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल उसका डेब्रिस है वो आता है. एंड अदर थिंग्स जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में है जिससे हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा ना पोल्यूशन टाइप है, तो ये हमारे पास मोस्टली ड्राई कंडीशंस में हमें मिलते हैं. बट व्हाट हैपन्स जब प्रेसिपिटेशन होती है तो विद द हेल्प ऑफ रेन इसको इन पार्टिकल्स को रेन सेटल डाउन कर देती है ऑन द सरफेस या ऑन सम ऑब्जेक्ट्स. सो दीज आर डस्ट पार्टिकल्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज structure of the atmosphere on the basis of temperature, means layers of the atmosphere. We have 5 layers. So layers of the atmosphere. Okay. So we have 5 layers that are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and the 5th one is exosphere. So for example ये हमारा अर्थ का सरफेस, right? So up to a height of 18 kilometers हमें मिलता है ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर. नेक्स्ट उसके बाद एक लेयर आती है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, सारी कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट. उस लेयर को वी कॉल इट एज ट्रोपोपॉज. उसके बाद हमारे पास एट अ हाइट ऑफ, ज्यादा ही ऊपर हो गया है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, 18 kilometers. This is tropopause, sorry troposphere. ये ऊपर है tropopause. Next, at a height of 50 kilometers, we can see stratosphere. Next, इसके ऊपर एक लेयर आती है known as stratopause. Next, up to a height of 80 kilometers, we can see another layer named as mesosphere. Next, up to a height of
we can say up to a height of 400 to 700 kilometers. We can see thermosphere. And next we have up to a height of 32,000 or 64,000 जो हमें different theories कहते हैं. So let's take at a height of 32,000 kilometers we can see exosphere. Okay, so this is the layers of the atmosphere. तो हमारे पास this is the troposphere. Troposphere. Next is stratosphere. Stratosphere. And this is known as mesosphere. This is known as thermosphere. And the last is exosphere. अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है which is named as lapse rate. एक lapse rate का कंसेप्ट आता है. It tells कि as we go up means जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जो हमारा टेम्परेचर होगा it will decrease. तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट एंड टेम्परेचर. मीन्स जैसे हमारी हाइट या ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा temperature will decrease. This is a very important concept of lapse rate. So let's see. ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा जो टेम्परेचर है डिक्रीज होता है एंड इट डिक्रीज अप टू अ रेंज ऑफ -80 डिग्री सेल्सियस. -80 डिग्री सेल्सियस. और जितने भी हमारे वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, ये जितने भी हमारे आसपास के फिनोमिनाज हैं, दिस ऑल टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर. ओके, उसके बाद एक लेयर आती है जो नोन एज ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज यहाँ पे हमारे पास हर एक चीज कांस्टेंट हो जाती है. आफ्टर दिस वी कैन सी अ लेयर नेम्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर. What does this mean? Strata means layers. तो means इसके अंदर एक और layer है. That layer named as ozone layer. And this is also known as ozonosphere. Right? Ozone layer. अब क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है हमारा टेम्परेचर बढ़ता है. It increases up to a range of 15 to 16 degrees Celsius, or you can only say up to a range of 15 degrees Celsius. Positive, not negative. यहाँ पे -80 डिग्री तक जा रहा है बट यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस जा रहा है इन पॉजिटिव. तो इट मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है. वाई इट इंक्रीजेस? हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में वी हैव एन अनदर लेयर नोन एज ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है. इट इज अ नेचुरल सनस्क्रीन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो क्या होता है कि जब हमारे सन से रेडिएशन आती है तो वो ओजोन लेयर उसको ट्रैप करती है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि क्यों इंक्रीज होता है हमारा टेम्परेचर. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊपर हाइट पे गए तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. अनदर यहाँ पे भी सेम लेयर आती है नोन एज स्ट्रेटोपॉज. Next, the another layer comes is mesosphere. Mesosphere में क्या होता है कि जैसे जैसे जाओ यहाँ पे भी हमारे पास लैप्स रेट लगता है कि जैसे ऊपर गए तो टेम्परेचर विल डिक्रीज. यहाँ पे एट अ हाइट ऑफ 80 डिग्री तक वी कैन सी टेम्परेचर ऑफ -100 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद वी हैव एन अनदर लेयर. इसी में जो हमारी एक लेयर आती है दिस इज मेसोपॉज. नेक्स्ट वी हैव थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर थर्मल मीनो हीट है. इट मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर अगेन बढ़ेगा. यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट. राइट? मीन्स कि जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. तो
तो यहाँ पे वी कैन फील द टेम्परेचर ऑफ 1500 डिग्री सेल्सियस। अभी आप में से ये पूछेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल कि अपर एरिया में 1500 डिग्री सेल्सियस है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो इट इज पॉसिबल क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास जो एयर होती है अपर पार्ट में, इट बिकम्स रेरिफाइड, हर जगह नहीं फैली होती। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा एक पोर्शन है तो यहाँ पे पूरी जगह एयर नहीं हमारे पास स्प्रेड होगी, ओनली इन स्मॉलर रीजन्स लाइक दिस। तो इन रीजन्स में जो हमें वाले छोटे छोटे बबल्स या पार्टिकल्स मिले, अगर इनको हम स्टडी करेंगे तो इनका टेम्परेचर हमें 1500 डिग्री सेल्सियस मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सोस्फीयर। सो वी कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज द आउटर स्पेस। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिलता है 5000 डिग्री सेल्सियस से 8000 डिग्री सेल्सियस तक, and up to a height of 32,000 kilometers we can experience the temperature of 5000 to 8000 degrees Celsius. So you can take a screenshot of this layer of the atmosphere. Okay. Next thing is one concept known as greenhouse gas effect. So इस effect में हमारे पास क्या होता है? This is earth, for example, उसी में बना लेना चाहिए था, no problem। चलो, ये हमारी अर्थ सरफेस है एंड दिस इज सन। तो इसकी जो रेज आती हैं, इन रेज को वी कॉल इट एज इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन, जो सन से हमें रेडिएशंस आ रही हैं, दैट इज नोन एज इंसोलेशन। अब क्या होता है कि जब ये रेज आती हैं तो हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में वी हैव सम ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है कि जब ये रेज आ रही है तो ये बहुत छोटी वेवलेंथ में आती है। दिस इज नोन एज अ वेवलेंथ। और ये बड़ी वेवलेंथ है, ये छोटी वेवलेंथ है, राइट। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये क्या करती हैं? दे बिकम्स ट्रांसपेरेंट टू इंसुलेशन। मीन्स जब हमारे पास सोलर रेडिएशन आती है तो ये इनको अलाउ करती है, इनको आने देती है, इनको रोकती नहीं है। बट जब यही वाली रेडिएशंस बाद में वापस जाती, जब अर्थ इनको एमिट करती है, तो दीज रेडिएशंस आर नोन एज लॉन्ग वेव रेडिएशंस। लॉन्ग वेव रेडिएशंस और नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जब ये सन से आती है तो दे आर नोन एज शॉर्ट वेव रेडिएशंस। शॉर्ट वेव रेडिएशंस। तो व्हाट हैपेंस कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस को दे डू नॉट क्या कहते हैं स्टॉप। बट व्हाट हैपेंस जब यही वाली रेडिएशंस अर्थ इनको वापस एमिट करती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इनको अलाउ ही नहीं करती कि ये इनको ऐसे एस्केप करके चली जाए। तो ये यहाँ पे इनको ट्रैप कर लेती है। मीन्स इनको ऊपर नहीं जाने देती, इनको यहीं पे ही ट्रैप कर लेती है। तो इस कारण से हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ओके, नाउ यू विल से कि अब हाइट के साथ साथ हमारा टेम्परेचर बढ़ा है।
इट इज गुड, इट इज फाइन। मैंने ये बोला कि हाँ हमारा टेम्परेचर बढ़ा, बट अभी मैंने ये भी बोला कि अपर रीजन में हमारे पास हमारा ट्रोपोस्फीयर का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहां पे कम हो रहा है। सो व्हाट इज द रीजन कि अपर लेयर में, अपर ट्रोपोस्फीयर में हमारे पास जो इस चीज से ऊपर है, सो व्हाट हैपेंस कि वहां तक हमारे पास ये वाली गैसेस नहीं जा पाती। तो ये वाली गैसेस भी हमारे पास एक कुछ लिमिट तक के एरिया में ही होती हैं, इससे ऊपर नहीं होती। तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ तक -80 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ तक थोड़ा सा आई एक्सेप्ट कि यहाँ पे बढ़ता है टेम्परेचर, बट ऊपर वाले रीजन में ये डिक्रीज होने लग जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग व्हिच आई हैव टू टेल। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव कवर्ड, सो लेट्स डू अ रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज एटमॉस्फेयर, उसकी डेफिनेशन दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, और इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ न्यूमरस गैसेस, है ना, विच सराउंड्स द अर्थ। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड कि क्या कहते हैं layers of atmosphere. The first is troposphere. So what is the importance of troposphere? That जितने भी phenomena हमारे पास weather related phenomena हो रहे हैं, biological phenomena हो रहे हैं, they all are taking place in the troposphere only. Next we have it extends up to a height of 13 to 18 किलोमीटर्स, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर बढ़ता कम होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, कहाँ तक, -80 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट हमें एक ट्रोपोपॉज करके एक लेयर मिलती है, उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है विच इज नेम्ड एज स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर हमारे पास 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होती है, एंड इन दैट वी कैन सी वन मोर लेयर नोन एज ओजोन लेयर, एंड स्ट्रेटोस्फीयर हैज इट्स अनदर नेम ओजोनोस्फीयर। So what happens, जो insulation होती है, the ozone layer traps that insulation and becomes one reason कि क्यों upper region में temperature increases. Next we can see is the mesosphere. Mesosphere is also popular. Why? Because वहाँ पे सबसे कम डिग्री टेम्परेचर को एक्सपीरियंस का नोट किया गया है, -100 डिग्री सेल्सियस अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। उसके बाद वी कैन सी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर फ्रॉम द नेम ओनली वी कैन टेल ये रिलेटेड टू हीट है। तो यहाँ पे हमें एट अ हाइट ऑफ 700 किलोमीटर, 400 to 700 किलोमीटर की हाइट पे हमें टेम्परेचर मिलता है 1500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वी कैन सी आउटर स्पेस, जैसे हमारे पास एक्सोस्फीयर है, तो वहां पे हमें टेम्परेचर इज लाइक 5000 डिग्री सेल्सियस और 8000 डिग्री सेल्सियस। द रीजन इज सेम कि हर जगह नहीं है, इट इज रेरिफाइड। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर है बहुत ज्यादा 8000 डिग्री सेल्सियस तक, वो बहुत छोटे छोटे हैं, इट इज रेरिफाइड। ठीक है, एक जगह मतलब कि इट इज नॉट लाइक कि हर जगह है, तो हर जगह होता तो हाउ इट्स पॉसिबल कि वहां पे कुछ सर्वाइव होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे स्पेस क्राफ्ट आ रहे हैं या जा रहे हैं, है ना, तो वहीं पे बर्न आउट हो जाते हैं। So this all, then we have studied about the greenhouse gases and the greenhouse effect, that how they allows the shortwave radiation to come to the earth's surface, but they trap, they do not allow the long wave radiations or the terrestrial radiations to escape the atmosphere of the earth. So this is all which we have done today. In the next lecture, we'll start with next topic which is related to our atmosphere only. Till the time, take care and revise all the previous things which we have done. So do share, subscribe and like to the global channel. And if you need further more information related to geographical things, so please follow us on Instagram and Facebook, and the ID is Gunjan__now. Thank you so much. Meet you in the next video. Thank you so much.